Hello dear students of class 12th, welcome to the third part of chapter 3 human reproductive system. Students, most of the part of this chapter we already studied, in that human male reproductive system, female reproductive system, after that gametogenesis and menstruation cycle and all that are included. Now few topics are left which we have to complete today. Okay, let's see the syllabus. Students, in previous class our last topic is menstruation cycle. Today we have to start with the topic that is fertilization. Students, you know that what is fertilization? Yes, the process of fusion of sperm or male gamete and ovum or female gamete is called fertilization. During the coitus, semen is released by the penis into the vagina. You know that this process is known as what? This process is known as insemination. The motile sperms swim rapidly through the cervix. You know about the cervix? Yes, see the structure of female reproductive system. Enter into the uterus and reach ampullary ischemic junction to the oviduct. That means fallopian tube से बहता हुआ इस्थेमेटिक जंक्शन में एम्प्यूले के पास चला जाता है. A sperm comes in contact with the zona pellucida, that means the last layer of ovum, and induces changes in the membrane to block the entry of additional sperm. जैसे ही एक स्पर्म एंट्री करता है वैसे ही उसमें कुछ चेंजेस होते हैं ताकि अदर स्पर्म की एंट्री को वो क्या कर दे, ब्लॉक कर दे. द एंजाइम्स ऑफ द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेल्प इन द डिजॉल्व जोना पेलुसिडा. यू नो दैट the head part of sperm is known as the acrosome, and it contains some hydrolytic enzyme which helps to dissolve the plasma, which helps to dissolve the membrane of what? Membrane of ovum. Okay, plasma membrane of ovum and sperm head is allowed to enter into the cytoplasm. Okay, membrane dissolve हो गई. अब sperm का head कहाँ इंजेक्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में. कहाँ? किसके साइटोप्लाज्म में? ओवम के. इट इंक्लूड्स कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 फ्रॉम सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी. अल्टीमेट डिप्लॉयड ज़ायगोट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड गैमेट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? ज़ायगोट बनेगा. ज़ायगोट कैसा होगा? तो ज़ायगोट डिप्लॉयड होगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन इज टेक प्लेस. व्हाट इज इम्प्लांटेशन? Students, implantation is what? Implantation is the attachment of fertilized egg into the wall of uterus. Understand? Zygote is divided rapidly by mitotic division. As you know, it moves through the isthmus of oviduct towards the uterus. ओविडक्ट और isthmus से होते हुए यूट्रस की तरफ मूव करता है. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लीवेज. ठीक है, ओविडक्ट से होते हुए कहाँ मूव करेगा? यूट्रस की तरफ मूव करेगा. ठीक है, इस्थमस, थ्रू द इस्थमस, स्थमस में जाएगा फिर यूट्रस की तरफ मूव करेगा. ठीक है, एज द रिजल्ट फ्रॉम 1 cell 2 cell देन 4 8 एंड 16 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. दिस आर टर्म्ड एज द ब्लास्टोमियर्स. 16 सेल स्टेज तक जो आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे आप क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर सेल्स कहेंगे. एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला. अंडरस्टैंड? ओके, डॉटर सेल 16 तक बनती है वो ब्लास्टोमियर हो गया, बट 8 से 16 ब्लास्टोमियर को आप क्या कहेंगे? दिस आर नोन एज द मोरुला. द मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड, transfer into the large mass called blastocyst. This passes further into the uterus. मोरुला बार बार डिवाइड होते रहता है और मास ऑफ सेल बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. अंडरस्टैंड? Then blastomere in the blastocyst are arranged in the outer layer called trophoblast. ओके, दैट मीन्स क्या होता है? कुछ सेल्स जो है वो बाहर की लाइनिंग में जम जाती हैं एंड ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड इन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास. दैट मीन्स यू कैन सी दिस.
outer cell, outer covering, that is trophoblast, and that is inner cell mass. Okay, the trophoblast layer get attached to the cell of endometrium. कहाँ से अटैच होगी? यूट्रस की इनर वॉल से, एंड यूट्रस की इनर वॉल का नाम क्या होता है? दैट इज एंडोमेट्रियम. एंड द इनर सेल मास गिव राइज टू द एम्ब्रियो. अंडरस्टैंड? देन अब अटैचमेंट के बाद क्या होगा? आफ्टर अटैचमेंट these cells of endometrium divide rapidly and cover the blastocyst. ठीक है, रैपिडली बार बार डिवाइड होगी और क्या करेंगी? ये जो पूरा ब्लास्टोसिस्ट मतलब कैविटी, ये वाली जो कैविटी है उसको पूरा ये कवर कर लेगी. सो द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एंडोमेट्रियम से इम्बेंडेड हो जाता है. पहले अटैच होगा, फिर डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? अटैच होता जाएगा. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन. जो क्या होती है? जो प्रेगनेंसी की स्टेप होती है, विच लीड्स टू द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी होने के लिए स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की, वो बहुत आवश्यक है. ओके students, the next topic which we have to study, that is what? That is pregnancy and embryonic development. okay students, आपने implantation के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, then pregnancy. These cells of trophoblast differentiate into the inner layer and outer layer. ठीक है, आपने ट्रोफोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, अंदर में अलग मास था, मास ऑफ सेल्स, एंड बाहर पे अलग था. ठीक है, देन द आउटर लेयर इज कॉल्ड कोरियन. जो बाहर की लेयर है वो क्या हो जाएगी? वो कोरियन कहलाती है. एंड इट फॉर्म्स द कोरियोनिक विली. और जो प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दैट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये देखिए, ये कोरियन हो गई, और वहाँ पर जो विलाइज निकलेंगे उन्हें हम कहेंगे कोरियोनिक विलीज, विच आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस टू ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम. जो कहाँ चले जाएंगी? एंडोमेट्रियम की तरफ जाती हैं. एंड इंटीमेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू. अंडरस्टैंड? कोरियोनिक टिश्यू और जो यूट्राइन विली है उनके कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यूज़ के बीच में एक बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है, एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहते हैं. कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू become interdelated with each other and forms the structural and functional unit between the developing embryo and maternal body called placenta. That means what? कोरियोनिक विली एंड यूट्राइन टिश्यू ये दोनों आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और एक न्यूली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बना लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर भी अपना होता है, फंक्शन भी होता है. और ये किसके किसके बीच में पाया जाता है? ये पाया जाता है एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में. इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? दिस इज नोन एज द प्लेसेंटा. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट इज प्लेसेंटा एंड व्हाट इज इट्स फंक्शंस. ठीक है, डायग्राम्स भी आते हैं, तो प्लेसेंटा का जो टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. फंक्शंस प्रोवाइड द नॉरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है. एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब न्यूट्रिशन देगा और वेस्ट मटेरियल को उनसे बाहर खींच लेगा. ठीक है, देन एंडोक्राइन टिश्यू की जैसे हेल्प करता है, जो बहुत सारे हार्मोन्स जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन HCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन, दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी. इन जो हार्मोन्स है उनको क्या करता है? ये उनको ये सिक्रीट करता है. अंडरस्टैंड? नाउ इन लेटर द फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन इज कॉल्ड रिलैक्सिन. ठीक है, प्रेगनेंसी जब समय हो जाता है प्रेगनेंसी को या कंसीविंग को, तो एक हार्मोन होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम नाम देते हैं रिलैक्सिन. ये ओवरी से सिक्रीट होता है. इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय ओवरी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ हार्मोन्स like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several fold and are essential for supporting fetal growth, metabolic change in mother maintenance of pregnancy. Okay,
क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ा होता है। ओके, और ये बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, ये बढ़ा हुआ लेवल जो है वो फीटल ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड, मदर और उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं इन जो हार्मोन्स की बढ़ी हुई डोज होती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एंड एम्बेनिकल कॉर्ड कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद द एम्ब्रियो। यू नो दैट कि एम्बेनिकल कॉर्ड एक होता है जिसको हम बोलते हैं वो नाल निकली है, ठीक है, दैट इज connects placenta with the embryo and helps in the transport of substance in the form of ovary। ये जो है आपका वो किस में डेवलप हो जाता है, ओवरी के जैसे वर्क करता है। ओके, और सब्सटेंसेस का प्लेसेंटा with the umbilical cord connect placenta with the embryo that can help transportation of substance and from the ovary। ठीक है, दैट मीन्स ये ओवरी से एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से ओवरी तक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये जो लेयर्स होती है ब्लास्टोसिस्ट की, ये 3 लेयर्स होती हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडिल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। इनर मास contains certain cells called stem cell that have potency to give rise to all tissues and organs। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो सेल्स में पोटेंसी होती है, ठीक है, जिसके कारण ये न्यू फंक्शंस या न्यू टिश्यू या न्यू सेल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, बताइए हम इसे क्या कहते हैं, सोच के रखिएगा। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। 1 साल में क्या बन जाता है, 1 साल में एम्ब्रियो 1 month में एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। देन 2nd month के एंड तक में लिम्स और डिजिट्स। देन 3rd month में, ये 3rd month के लास्ट तक में लगभग सभी ऑर्गन बन जाते हैं। बालों में हेयर और फीटस मूवमेंट जो है वो 5th month में स्टार्ट होता है। 6 month के बाद बॉडी पूरी बॉडीज़ पे कवर आ जाते हैं और आइज़ पे आइज लेसेज आ जाती हैं। एंड 9 month के एंड तक में फीटस अपना डेवलप कंप्लीट कर लेता है डेवलपमेंट और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुरेशन। स्टूडेंट्स, पार्चुरेशन पढ़ने के पहले आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पढ़ लीजिए। इसमें कोरियन, एमनियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, प्लेसेंटा नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा कोरियन, एमनियन, एलेंटोस एंड योक्स है। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स पार्चुरेशन। व्हाट इज पार्चुरेशन? Actually, the average duration of human pregnancy is about 9 months. It is called gestation period। जिसका प्रेगनेंसी समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, gestation period। ये किसके जैसे काम करता है, ये फुल टर्म फीटर को मदर की बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है थ्रू द यूट्रस। ओके, gestation पीरियड के एंड में जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, विगोरस कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, यही जो है वो पार्चुरेशन कहलाता है। पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विथ इंड्यूस्ड वाइंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दैट मीन्स बहुत सारी सीरीज बाई सीरीज प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से जो हमारा यूट्रस है वो बार बार मतलब यूट्रस जो है वो श्रिंक होने लग जाता है। ठीक है, कि नाउ ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, यूरिन और मसल यूट्राइल और मसल कॉन्ट्रैक्शन को लीड करता है। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, इससे रिफ्लेक्स एक्शन होगा किसके बीच में, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीसिन के बीच में, ऑक्सीटोसिन के बीच में, जो क्या करेगा,
जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसे और बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में दर्द कम होता है, लेकिन जब भी बच्चा बाहर आने लग जाता है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है। लाइक दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। Then lactation, you know about the lactation. Mammary glands of female undergo differentiation and start producing milk. This process is known as the lactation. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आप बढ़िया असाइनमेंट की प्रिपरेशन कीजिए। आफ्टर असाइनमेंट आई विल ऑल्सो send you some questions. Okay, that's it and thank you for listening me. Appreciate. We will meet in our next video. तब तक आपको क्या क्या पढ़ के रखना है, आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बुक के पीछे वो तो सॉल्व करना ही है, साथ में गेट रेडी फॉर माय असाइनमेंट. ओके, गुड डे.